عزم پختہ ہو تو کامیابیاں ضرور ملتی ہیں۔ پاکستان کی پہلی آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز شرمین عبید چنوائے ایک بار پھر اکیڈمی ایوارڈ کے نزدیک ہیں۔ قوم کی دعائیں اور نیک تمنائیں فخر پاکستان کے ساتھ ہیں۔ بیسٹ آف لک شرمین عبید چنوائے۔ اور حکومت کی ٹیکس امنیسٹی اسکیم ختم ہونے میں صرف 3 دن بچے ہیں۔ ٹارگٹ 10 لاکھ تاجروں کا تھا، لیکن صرف 128 تاجروں نے 2 کروڑ روپے کا ٹیکس جمع کروایا۔ تاجروں کی ہٹ درمی کے آگے حکومت آخر کیا کرے گی؟ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ سندھ حکومت کراچی کے ساتھ جو کرتی رہی ہے وہ ہم اپنے پروگرامز میں آپ کو بار بار بتاتے رہے ہیں۔ کراچی دنیا کے ان 15 ممالک میں آتا ہے جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے، لیکن کراچی کی جتنی آبادی ہے یہاں عوام کے لیے سہولیات اتنی ہی کم ہے۔ ہم نے اپنے مختلف پروگرامز میں مختلف مافیاز کا ذکر کیا ہے۔ کل آپ کو بتایا کہ کراچی میں ایک کچرا مافیا بھی ہے جو مختلف آفیسرز کو اس بات کے پیسے دیتی ہے کہ کچرا نہ اٹھانا، کچرا جمع ہونے دینا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں ایک ٹرانسپورٹ مافیا بھی ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی حکومتی پروجیکٹ کامیاب نہ ہو پائے۔ جہاں حکومتوں کی کارکردگی ناقص ہے، جہاں حکومت کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے میں انٹرسٹ نہیں لیتی، جہاں آفیسرز کا فیلئر نظر آتا ہے، وہاں مافیائیں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور جو سہولیات اس شہر کو مہیا کی گئی ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، چاہے پارکس ہوں، ہسپتال ہوں، سڑکیں ہوں یا پھر ٹرانسپورٹ۔ ایک طویل داستان ہے جو ان سب کے ساتھ ہوا اور اس شہر میں ہوا۔ آج ایک بار پھر اس شہر کو ایک خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ خوشخبری گرین لائن بس منصوبے کی صورت میں دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف آج کراچی آئے، جہاں انہوں نے گرین لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ منصوبہ اگلے سال مکمل ہوگا یہ بھی بتایا گیا، لیکن کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ کوئی پہلا منصوبہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2005 اور 2009 میں بھی اس طرح کے منصوبے شروع کیے گئے، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ یہ وہ گرین لائن منصوبوں کی کہانی ہے جس کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا، اور یہ 2 منصوبوں کی کہانی ہے جس کا ایک کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا اور ایک وہ جس کا افتتاح 2009 میں کیا گیا۔ سندھ میں قائم علی شاہ کی وزارت اعلیٰ 7.5 سال سے قائم ہے، جبکہ پچھلے 13 سال سے ڈاکٹر عشرت العباد گورنر کے منصب پر فائز ہیں۔ اس پورے عرصے میں دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں شامل ہونے والے کراچی کے ساتھ زیادتیوں کے پہاڑ توڑے گئے، کچرے کے ڈھیر اور گٹرز، بہتے ہوئے گٹرز لوگوں نے دیکھے، اور بسوں کی چھت پر سفر کرتے عوام یہ بنی کراچی کی پہچان، اور اب اس پہچان پر پریشان ہے کوئی اور نہیں، خود وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ۔ آج جب وزیر اعظم پاکستان کراچی میں گرین لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے، تو اسی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب نے بھی خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران قائم علی شاہ کی بے خبری کا پول انہوں نے خود کھول دیا۔ ایک معاملہ ہے کراچی کے معاملات میں دلچسپی نہ لینے کا، ایک معاملہ ہے کہ کراچی کو میں ڈیولپمنٹ نہ کرنے کا، لیکن کراچی میں ایک پروجیکٹ لگ رہا ہو اور وزیر اعلیٰ کی دلچسپی اس میں اس حد تک بھی نہ ہو کہ کیا اس پر پریزنٹیشن ہو رہی ہے، وہ کس طریقے سے بنے گا، کتنے کلومیٹر کا ہوگا، باقاعدہ ہوم ورک کر بھی قائم علی شاہ صاحب تقریرہ کر رہے ہوں، یہ شاید اس کی توقع نہیں کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ ہوا کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے CEO صالح فاروقی کے خطاب کے بعد، جنہوں نے گرین لائن منصوبے کے حوالے سے خطاب کیا تھا اور اس کی تفصیلات بتائی تھی۔ لیکن جب قائم علی شاہ صاحب خطاب کرنے آئے تو ایسا لگا کہ انہیں اس منصوبے کا علم ہی نہیں، انہوں نے اس منصوبے کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہی نہیں۔ آج وہ اس منصوبے کے افتتاح کے لیے آئے ہیں جو کراچی میں بن رہا ہے، کراچی کے عوام کے لیے بن رہا ہے، تو کوئی ہوم ورک کر کے نہیں آئے۔ ان کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی کہ اس پروجیکٹ میں کیا کیا ہوگا، کس طریقے سے بنے گا، کتنے کلومیٹر کا ہے۔ وہ کوئی 4-5 ڈاکیومنٹ پڑھ کے آئے ہوں، ایسا بالکل نہیں لگا۔ اپنے خطاب کے دوران قائم علی شاہ نے کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے CEO صالح فاروقی کی تصحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں خود اپنی تصحیح کرنی پڑی۔ کیا ہوا ذرا دیکھیے۔ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں جناب، میں تعریف کرتا ہوں، آپ نے صحیح چنا ہے آدمی فاروقی صاحب۔ لیکن انہوں نے جو بات کی کہ یہ اب 11 میل یا 11 کلومیٹر ہوگا، تو اس پہ ذرا تھوڑی حیرت ہوئی ہے جناب۔ ہم نے راستے میں بھی آپ سے بات کی، گورنر صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہے کہ پلان تو یہ ہے کہ 18 کلومیٹر ہوگا اور صدر تک ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کم از کم صدر تک بڑھایا جائے۔ ابھی کی ہے، اچھا بڑی اچھی بات
इन्होंने कहा 18 किलोमीटर ही होगा, तो बहुत अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी मेहरबानी की, हमने चंद अल्फाज गुजारिश की तो उन्होंने कहा नहीं, ये 18 किलोमीटर ही होगा। कायम अली शाह साहब बयान किए जा रहे थे, फारूकी साहब को खुद उठ के आना पड़ा, बताना पड़ा कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, तो वही मामला है। कायम अली शाह के खिताब के बाद वजीर आजम जब खिताब करने आए तो वो भी कायम अली शाह से मुखातिब हुए और उनके हकाइक को दुरुस्त करने की कोशिश की कि वजीर आजम ने ग्रीन लाइन मंसूबे की तफसीलात वजीर आला सिंध को बताई। जिनके सूबे के कैपिटल कराची में ये मंसूबा बन रहा है, उनकी तफसीलात वजीर आजम को तस्हीह करके वजीर आला को बतानी पड़ेगी। जब मोहतरम कायम अली शाह साहब ने जिक्र किया कि ये 18 किलोमीटर से कम होकर 11 किलोमीटर कर दिया गया है, तो वो मेरा ख्याल है कि 11 किलोमीटर नहीं किया गया, 11 किलोमीटर 11.7 इसका एलिवेटेड हिस्सा है, वो 11.7 किलोमीटर है जो यानी कि जमीन से ऊपर होगा, और फिर जो जमीन के ऊपर होगा वो 7.7 है, तो ये मिला के 18 पॉइंट कुछ बनते हैं। 18.4 किलोमीटर का मंसूबा है, सॉरी प्रोजेक्ट लेंथ जो वो 22 किलोमीटर है। इसी तकरीब में मौजूद थे गवर्नर सिंध साहब, जिन्होंने बहुत सारी बातें की, शेर भी सुनाया वहां पर मौजूद हाजरीन को कि ना बस चलती थी ना बस चला, मगर एक ऐसा वक्त था जब बस भी चलती थी, बस भी चला, और गवर्नर सिंध साहब ने भी कुछ वादे किए थे। उन्होंने 13 साल से जायद इस अरसे में वो इस कुर्सी पर मौजूद है, तवील तरीन गवर्नर का ओहदा रखने वाले शख्स हैं, और गवर्नर सिंध 13 सालों में बहुत कुछ कर सकते थे। अगर वो पिछले 13 सालों में नहीं तो पिछले 7 सालों में तो जरूर कर सकते थे, क्योंकि आज वो जिस ग्रीन लाइन मंसूबे का संगे बुनियाद रख रहे हैं, तो इस तकरीब में कायम अली शाह भी थे। और आज जो गवर्नर सिंध साहब ने कहा वो जरा सुनिए, शिकवा भी किया, अपने बचपन के ख्वाब की भी बात की, इस शहर के हवाले से भी बात की, मगर ये पहली दफा बात नहीं कर रहे थे। हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जो गवर्नर सिंध साहब पहले भी कर चुके हैं। बस भी चल रहा था और बसें भी चल रही थी, मगर आज क्या कहा दरअसल सब इसको पाकिस्तान का दिल तो कहते रहे, लेकिन दिल की हिफाजत किसने की, दिल की देखभाल किसी ने भी नहीं की। दिल की शरियानें भी बंद होती गई, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। तब मुझे भी याद है, मैं बचपन से मास ट्रांजिट और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी सुनता था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। कराची में बस का अजब मामला था। कुछ अर्से पहले से कराची में बस का अजब मामला था, न बस चल रही थी न बस चल रहा था। वज़ीर आज़म भी महसूस हुए, दूसरे हाज़रीन भी महसूस हुए। गवर्नर सिंह जो कह रहे हैं कि बस चलाने में उनका बस नहीं चल रहा, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी 2009 में उन्होंने ग्रीन लाइन बसों का इफ्तिताह किया। ये एक रैपिड बस प्रोजेक्ट है, वो एक नॉर्मल बस प्रोजेक्ट था, मगर बहरहाल ग्रीन लाइन बसों की एक लंबी कतार थी जिसके साथ इफ्तिताह किया गया। उस वक्त के कराची के नाज़िम मुस्तफा कमाल के साथ ये इफ्तिताह हुआ। उन्होंने बताया था कि ग्रीन लाइन बस कराची के अवाम के लिए सहूलत है, कराची की तरक्की में ये एक अच्छा इजाफा है। कराची के उन इलाकों को जिनमें लोगों ने शायद कभी देखा भी ना हो, बुनियादी सहूलतें पहुंचाई गई हैं जिनमें के कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये एक और एडिशन है CNG बसेस का, जिस पे मैं मुस्तफा कमाल साहब को, कराची के शहरियों को बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कहानी है 2 ग्रीन लाइन बसों की, दोनों का रूट एक, दोनों का रंग एक, दोनों के संगे बुनियाद पर बयानात एक रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम है, एक नॉर्मल बस ट्रांजिट सिस्टम था, लेकिन मुख्तलिफ हैं तो सिर्फ और सिर्फ हालात। उस ग्रीन बस का आगाज खुद गवर्नर सिंध ने किया था, फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खूबसूरत बसें किन बसों में कन्वर्ट हो गई वो आपको स्क्रीन के मनाजिर दिखा सकते हैं। 2009 में जो ग्रीन बसें कराची की सड़कों पर आईं, उनमें टिकट का जदीद निजाम मुतारिफ कराया गया, लेकिन ये सब चल नहीं सका। न सिर्फ टिकट का निजाम जदीद बनाया गया, बल्कि मुख्तलिफ स्टॉप बनाए गए, वहां लोगों के बैठने और बस का इंतजार करने का निजाम बनाया गया। जोश और जज्बे से 2009 में ग्रीन बसों का आगाज किया गया और चंद सालों में ये बसें सड़कों से गायब होती चली गई। कराची में ट्रांसपोर्ट माफिया और सिंध हुकूमत की गफलत ने कराची के अवाम के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को कम करने की बजाय उनमें इजाफा किया। और जब हम ट्रांसपोर्ट माफिया की बात करते हैं तो हुकूमत की नाअहली बहरहाल है। सिंध हुकूमत का कराची के अवाम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी ना होने का फैक्टर बहरहाल है, मगर कराची में ट्रांसपोर्ट माफिया भी है।
दूसरे सूबे के और दूसरे शहरों के अवाम सुनते हो तो शायद उन्हें इस बात पर हैरत होती हो कि जी हुकूमत की नाअहली तो समझ में आती है, ये ट्रांसपोर्ट माफिया क्या होती है। आर्टिकल्स लिखे गए, फीचर्स बने कि ट्रांसपोर्ट माफिया का बिजनेस हर्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश की कि ये ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट फ्लॉप हो। यहां तक होता रहा और यहां तक खबरें आती रहीं कि जो नॉर्मल बसों के, जो लोकल बसेस के ड्राइवर हैं वो ग्रीन लाइन बसों को टक्कर तक मारते हैं, उन्हें साइड देकर जाते हैं ताकि ये बसें खराब हों। यहां तक खबरें आती रहीं कि ये बसें ना चलें, इसके लिए ये बात यकीनी बनाई जाती है ताकि जो लोकल बसेस हैं, जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, उनका बिजनेस ना हर्ट हो। तो हुकूमत की नाअहलियां भी, ट्रांसपोर्ट माफिया भी इस शहर में बसों के चलने में रुकावट रही। और ये बस भी इन इलाकों से गुजरेगी जिन इलाकों से उस सीएनजी ग्रीन बसों ने गुजरना था। जिस बस का आज आगाज किया गया है, उस बस के साथ हुकूमत और अवाम ने जो कुछ किया वो सबके सामने है और ये आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। 2009 में कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, एक बार फिर अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। कराची के मसाइल को हल होना चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत को जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इन सहूलियात की देखभाल के लिए भी इंतजामात करना होंगे। अगर वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, वजीर आजम ने कराची के अवाम के साथ एक वादा पूरा किया है, मगर इस निजाम को चलाना, मेक श्योर करना ये बने भी चले भी, ट्रांसपोर्ट माफिया की नजर ना हो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की होगी जो उन्हें पूरी करनी होगी। प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लंदन से एक अहम खबर आई है और फाइनली लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस आइदर वे खत्म हो जाएगा और पहली दफा लंदन पुलिस ने अदालत में जाकर एक डेडलाइन दी है और डेडलाइन है अब से 2 माह की, यानी अप्रैल में या तो ये केस खत्म हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, या फिर इस पर चार्ज किया जाएगा। लंदन में मुत्तहिदा के कायद के घर और दफ्तर से जब्त की गई रकम से मुताल्लिक पहली बार खुली अदालत में समाअत हुई। ये समाअत मगरबी लंदन में मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई, जिसमें सरफराज मर्चेंट अपने वकीलों के साथ आए, जबकि मुत्तहिदा के कायद तारिक मीर और सरफराज अहमद और इफ्तिखार कुरैशी के वकला पेश हुए। अदालत में समाअत के दौरान लंदन पुलिस ने बयान दिया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के घर और एमक्यूएम के दफ्तर से जब्त की गई रकम का ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात से है। साथ ही लंदन पुलिस ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फौजदारी दफात शामिल करनी है या नहीं, फैसला अप्रैल तक कर लिया जाएगा। जराये के मुताबिक इस केस में मजीद भी अहम पेशरफ्त अप्रैल के बाद होगी, जबकि केस की समाअत के बाद जारी होने वाले एमक्यूएम के बयान के मुताबिक लंदन पुलिस के पास मौजूद पार्टी फंड्स की रकम कानूनी है, गैर कानूनी नहीं। उन्हें यकीन है कि अदालत में एमक्यूएम का मौक़िफ़ सच साबित होगा। आज अदालत में क्या हुआ, एक है केस का ड्रॉप होना या फिर ड्रॉप ना होना, दूसरा मामला है जो पैसे जब्त किए गए थे अल्ताफ हुसैन साहब से और जिसकी जो मालियत है तकरीबन £500,000 या 5 लाख पाउंड बनती है, उनका क्या होगा। इन दोनों मामला के हवाले से आज अदालत में क्या हुआ, मुर्जा अली शाह हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। अंदर की बात बताइए, आज अदालत में ऐसा क्या हुआ जो आपने देखा? केस को खत्म करने की बात हो रही है अप्रैल में, आइदर वे, या तो ये केस आगे बढ़ेगा तो चार्ज होना या फिर ये केस का खत्म हो जाना, क्या हुआ आज अदालत में? जी शाहजेब, यहाँ जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जज के सामने पहली बार आज बहुत सारी चीजें ओपनली डिस्कस हुई और ये सारी तीनों तरफ के जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सुनने के बाद यहाँ पर जो जज थे उन्होंने ये डायरेक्शंस इशू की हैं और पुलिस से ये उन्होंने कमिटमेंट ली और पुलिस ने आज जज को ये रिटन में भी दिया है और ओरली भी वहां पर ये हियरिंग में बात सामने आई। पुलिस ने अब ये कहा है कि जो अप्रैल के एंड तक अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के केस के हवाले से उन्होंने फैसला करना है कि अप्रैल के एंड पे कि क्या चार्जिंग डिसीजन लाए जाएंगे या इस केस को खत्म कर दिया जाएगा। एमक्यूएम और उनके साथ इस केस में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर किसी किस्म का केस नहीं होगा। पुलिस ने इस बात का कोर्ट से वादा कर लिया है कि अप्रैल के एंड तक इसका फैसला होगा। जब यहाँ पर आज समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले सरफराज मर्चेंट के वकील ने उनका ये कहना था कि उनके जो क्लाइंट है सरफराज मर्चेंट है, उनके पास बहुत थोड़ी अमाउंट है, तकरीबन 25,000 पाउंड की अमाउंट है जो बनती है, लेकिन उनको 2013 दिसंबर से उन्हें इस केस में डाला गया। उनको लंदन और पाकिस्तान आने जाने में मुश्किलात है, उनको लंदन में रहना पड़ रहा है इस केस की वजह से। उनके वकील ने ये इस्तदा की कि उन्हें इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। एमक्यूएम के जो वकील है आज उन्होंने यहाँ इस बात को माना। उनका ये कहना है कि जितनी भी जो तकरीबन £500,000 की जो अमाउंट है, उनका ये कहना है कि वो जो बड़ी अमाउंट है, जो लार्ज शेयर है, वो अल्ताफ हुसैन का ही है। सर साहब, ये जो अमाउंट है 5 लाख पाउंड, फिर इसका क्या होगा? अगर अप्रैल की डेडलाइन है, 5 लाख पाउंड के हवाले से क्या होगा?
पुलिस ने एक तरफ तो यह कमिट किया है कि वो अप्रैल के एंड तक इस केस पे फैसला दे देंगे, दूसरी तरफ पुलिस का यह कहना है कि सितंबर यानी इस साल सितंबर में कोर्ट ने एक और डायरेक्शन दी है कि उसमें एक और हियरिंग होगी जिसमें जो $500,000 पाउंड है उसके बारे में फैसला होगा कि उसका बनना क्या है। यानी ये केस अप्रैल के बाद भी जो पैसे हैं उसके हवाले से ये हियरिंग चलती रहेगी रिगार्डलेस के अप्रैल के एंड पे पुलिस क्या फैसला करती है। अब कोर्ट ने पुलिस को एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दी और पुलिस से ये कहा है कि इस साल मई में पुलिस पूरा डिस्क्लोज करे कोर्ट को कि वो इन पैसों के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है उनके पास और उनके पास किस बुनियाद पे उन्होंने ये पकड़े थे, और पुलिस बताए कि किन सोर्सेज से ये जो $500,000 पाउंड की रकम थी वो आई थी। और उसी तरह उन्होंने MQM और सरफराज मर्चेंट और दिगर लोगों को भी कहा है कि जब पुलिस उनको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देगी उसके बाद उन्होंने भी बताना है कि उनको किस हवाले से ये सारे पैसे उनके पास इतनी बड़ी कैश अमाउंट्स मौजूद थी। मगर मुर्जा, क्या पुलिस पाबंद नहीं होगी इस बात की कि अगर अप्रैल में ये केस फॉर एग्जांपल अगर इस केस का फैसला ड्रॉप की सूरत में आता है कि जी ये केस ड्रॉप किया जा रहा है तो पाबंद नहीं होगी कि जी ये 5 लाख पाउंड वापस किए जाए, जिसके लिए मुत्तहिदा कह रही है कि सारा का सारा कानूनी पैसा है, सितंबर में या बाद में ये पाबंद नहीं होगी पुलिस? इस हवाले से क्या कह रही है? देखिए, जो आज पुलिस ने जो रिस्पांस दिया है यहाँ जज के सामने उसमें ये बहुत क्लियर लग रहा है और ये पॉसिबिलिटी है पुलिस को ये इख्तियार है कि वो अप्रैल के एंड पे आए और उन्हें कहे कि पैसे भी हम लौटा रहे और केस को भी खत्म कर रहे हैं। पुलिस ये कह सकती है, लेकिन पुलिस ने आज ऐसा बिल्कुल नहीं किया और पुलिस ने आज कैटेगोरिकली जज को ये बताया कि वो पैसों के हवाले से नो मैटर व्हाट हैपन्स वो कॉन्टेस्ट करेंगे। पुलिस के लिए भी ये एक बजाय खुद एक ट्रैप बन चुका है कि आखिर वो क्या वजूहत है कि उन्होंने इससे पहले इस स्टेज तक चार्जेस नहीं लाए और अगर आप चार्जेस ड्रॉप करते हैं तो वो किस बुनियाद पर करेंगे और अगर फिर पैसा रखते हैं और चार्जेस नहीं करते तो उसके बारे में पुलिस के पास क्या जस्टिफिकेशन होगी। लेकिन ये बात क्लियर है कि पुलिस के जो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत ये पैसे वापस नहीं देना चाह रहे, वो इसको एक सिविल अगर उनको क्रिमिनल कोर्ट में ना भी लड़ना पड़ा वो सिविल कोर्ट में लड़ेंगे और पुलिस ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि उनके पास ये ऐसे इतने शवाहिद हैं, वो समझते हैं कि ये जो पैसे हैं उनको सीज कर दिया जाए, उनको वापस ना किया जाए। बहुत शुक्रिया मुर्जा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे हैं कि खुद पुलिस के लिए भी एक मसला बन गया है कि अब इस हवाले से करना क्या है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद बात करेंगे वसीम अकरम से, वकार यूनुस से, दोनों स्विंग के सुल्तान हमारे साथ मौजूद होंगे और बात करेंगे उनसे कि ये जो कल मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का उसमें क्या चांसेस हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी और आपको जरा दिखाएंगे जो पिछला मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में 50 ओवर्स का फॉर्मेट था उस वक्त, तो क्या जबरदस्त तरीके से 2 छक्के मारकर आफरीदी ने जिताया था जो आज भी पाकिस्तानी नहीं भूलते। और कल के मैच पे क्या होगा इस पर बात करेंगे। कल हमने आपको बताया था उस बैग के बारे में जो 5 माह लंदन में रहा, फिर वापस कराची आ गया और इस बैग में 21 किलोग्राम आला मयार की हेरोइन थी और कल तक इस बैग के मालिक का किसी को इल्म नहीं था। कल इस प्रोग्राम में हमारे नुमाइंदे तारिक अबुल हसन ने यह अनोखा वाकया रिपोर्ट किया था, लेकिन आज हुकाम ने इस बैग के मालिक को तलाश कर लिया है। लंदन से तकरीबन 5 माह बाद वापस आने वाले हीरोइन से भरे इस बैग के मालिक का पता चला है और कल प्रोग्राम में डिस्कस भी किया गया था कि क्योंकि बैग टैग के जरिए वापस आया है इसलिए पता चल जाएगा कि इसका मालिक कौन है जो इसको लेके गया था। आज कराची में कस्टम हुकाम की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लंदन से पाकिस्तान वापस आने वाला बैग गुज़िश्ता साल 29 अक्टूबर को PIA की परवाज PK 757 से लाहौर से लंदन भेजा गया था। भेजने वाले शख्स की शनाख्त महमूद इमरान के नाम से हुई है जो बरतानवी शहरी है। महमूद इमरान हेरोइन से भरा बैग लेकर लाहौर से लंदन तो पहुंच गया लेकिन वो इसे साथ नहीं ले जा सका और एयरपोर्ट पर ही छोड़ गया, यानी पाकिस्तान से चला गया, लंदन पहुंच गया, लंदन से निकलते हुए जो चेकिंग होती है उसके डर से या किसी और वजह से वहीं छोड़ गया और अब बाहर निकल गया। कस्टम हुकाम का कहना है कि वो बरतानवी कस्टम हुकाम को मुलजिम की गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए खत लिख रहे हैं। यहाँ अहम बात यह है कि न पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर मौजूद हुकाम ने इस बैग की शनाख्त की और न लंदन एयरपोर्ट पर मौजूद हुकाम ने यह जाना कि इसमें क्या है। 5 माह वहां पड़ा रहा, उसके बाद वापस आया, फाइनली इस शख्स की शनाख्त हो गई है और ये इसलिए भी अहम है, जैसा कि हमने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि इस शख्स की गिरफ्त से और इसके बयान से पता चलेगा कि ये लेकर गया तो इसने कहां से खरीदा, क्या इसका नेटवर्क है, किस माफिया का ये हिस्सा है और एयरपोर्ट पर मौजूद